Okay, so I will start now. So today we are here for this free webinar about how to find the levels and prepare the charts for intraday. So I will just take you from the basic kind of theoretical and then we will go on the practical. So let's go with the first thing, like why these chart levels are important. So simple answer, like all these prices are having memory because why? Because of the human nature, because they have remember the pricing of any entity or stock or equity, and those prices will trigger the human mind based on the past data and the based on the past movement. So this is why in general in the stock market people are saying bhau bhagwan che, means price is god. So this is why we are keeping these levels on the important to mark on the chart, and then we can take the decision based on the past data, how it was reacting near these levels. So generally some of price levels will work as a supply zone. Supply zone means in which they will have the more seller. So seller will act as a resistance. Whenever the price is coming at particular level, they will try to sell more. And some of the price will work as a support because there is a demand, because some particular price they will trigger the buying in the most of the trader or the investor. So these are the main two things, support and resistance are important in preparing the chart. So this is just the basic idea about what is a support or demand level and what is the resistance or supply level. So support level is price from where the demand is generated for the buying, and resistance is the level where the supply is generated for the selling. So if price is coming near for one particular level and it is keep on taking the support and going up, increasing, so it means it is the level of the support. And the same in the vice versa, like if it is keep on coming at certain level but it is failing to go above, but it is keep on decreasing from that level, then it is the resistance level. So you can take the screenshot of this if you want. These are the like a basic steps to prepare the chart. This is very simple, I'm keeping it simple. ये आप सिंपल स्टेप है, इसका आप ऐसा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ये जनरली सिंपल स्टेप्स है चार्ट प्रिपरेशन को कॉम्प्लिकेट करने से बचने के लिए. सो फर्स्ट स्टेप जो है is to watch the chart on bigger time frame. It is like 1 day time frame and 1 hour time frame. So first step is to watch the chart on the bigger time frame, 1 day time frame and 1 hour time frame. 1 day टाइम फ्रेम एंड 1 आवर बिगर टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखना है कि वहां पे सपोर्ट लेवल कौन सा था, सपोर्ट लेवल या सपोर्ट जोन कौन सा है, रेजिस्टेंस लेवल और रेजिस्टेंस जोन कैसा है. तो ये हमको मार्क करना है फर्स्ट स्टेप में. देन ऑन द सेम टाइम फ्रेम, 1 day एंड 1 hour टाइम फ्रेम, वी हैव टू फाइंड इफ देयर इज एनी पैटर्न या फिर कोई ट्रेंड लाइन है, और इफ देयर इज एनी चैनल. सो सेकंड फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द पैटर्न और ट्रेंड लाइन और इफ देयर इज अ चैनल. So pattern क्या क्या है? So what are the patterns? So first, like I'm giving you the basic, which are very much pretty much famous pattern, like head and shoulder, inverse head and shoulder, rounding bottom, double top, cup and handle, and there are many other patterns that maybe you are aware about it. सो 1 day टाइम फ्रेम पे ये हमको पैटर्न ऐसे देखने के, अगर ये पैटर्न बन रही है कि नहीं, नहीं बन रही तो ठीक है, वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप. अगर आपको ट्रेंड लाइन भी दिख रही है देन इट इज ऑल्सो बेटर. अगर 1 day टाइम फ्रेम पे सिर्फ आपको लेवल्स, सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, सो वी कैन स्कीप ऑन द सेकंड स्टेप. इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी पैटर्न और ट्रेंड लाइन और चैनल, देन यू कैन गो ऑन द नेक्स्ट टाइम फ्रेम. सो ये लेवल निकालने के बाद बड़े टाइम फ्रेम पे वी विल गो टू द 15 minute टाइम फ्रेम, जहाँ पे हम इस लेवल को एडजस्ट करेंगे. एंड ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, 15 मिनट की जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, उसके ऊपर वी विल ऑल्सो फाइंड इफ देयर इज अ पैटर्न और ट्रेंड लाइन और चैनल ऑन दिस स्मॉलर टाइम फ्रेम. सो 1, 2 एंड थर्ड स्टेप हो जाने के बाद, सॉरी, रिफाइन और एडजस्ट का मीनिंग ये हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे 1 आवर और 1 day टाइम फ्रेम पे कोई एक लेवल निकाला है, बट वी हैव टू ऑल्सो एडजस्ट ऑन द 15 minute टाइम फ्रेम. लाइक सम लेवल्स विल बी लाइक 10 or 15 points up and down in the index, or in the stock it will be either 2-3 points up and down, that we can refine it or adjust it by watching on 15-minute time frame. And then the next fourth and last step is to find 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नए लेवल्स जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो फाइंड करने. अगर देयर विल बी सम जोन एज वेल विच विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस जोन, support zone or neutral zone. So what are the neutral zone? Neutral zone means at that level price can go on any side of the direction. मेरे चार्ट्स में देखे रहेंगे कि मैं जनरली एक ब्लू कलर का एक जोन दिखाता हूँ चार्ट पे.
कि अगर ये प्राइस ये जोन के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है सो इट विल वर्क एज अ सपोर्ट, अगर इसके नीचे हो रहा है तो इट विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस। सो वो जो जोन है दैट जोन विल बी नोन एज द न्यूट्रल जोन। So these are the four total steps that you can consider to making and identifying the levels. Okay, so let's prepare chart. आपके सामने लाइव चार्ट प्रिपेयर करेंगे और देखते हैं कैसे हो रहा है. So everyone is able to watch this Nifty. I will adjust a bit. So we will go step by step. First step is to identify support and level zone or resistance zone on 1 day time frame and 1 hour time frame. Okay, so we will make this as a 1 day time frame. आप यहाँ से भी कर सकते हो टाइम फ्रेम, यहाँ पे जाके 1 डे टाइम फ्रेम एंड इसको थोड़ा एडजस्ट करके. ओके, सो हियर 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, कहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट लिया और कहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस लिया वो पहले देखना है. सो वी कैन सी एक सपोर्ट यहाँ पे लिया था, दूसरा भी वही लेवल के आसपास सपोर्ट है. एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, मतलब यहाँ पे अटक गया था, यहाँ पे भी ये सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ पे भी ये सपोर्ट ले रहा था, और यहाँ पे भी एक बार ये सपोर्ट लेके इंट्राडे में यहाँ से ऊपर वीक बनाया था. और ये तो मतलब ये जो जोन है कह सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के तौर पे काम कर रहा है. सो अभी ये लेवल को मार्क कर देंगे, तो ये लेवल आ रहा है 17,615 के आसपास. सो वी विल सी व्हाट आर द क्लोजिंग एंड द ओपनिंग प्राइस और द लो प्राइस और द हाई प्राइस. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो इसका जो लो है तो आप यहाँ पे देखिएगा ये जो एल है, तो ये एल जो आ रहा है 17,613. यहाँ पे जो एल है वो आ रहा है 655. फिर इसका जो लो है वो आ रहा है 593. इसका जो लो है वो है 613, इसका भी है 613. सो मतलब ये दो जो लो है वो ऑलमोस्ट सेम बने, 613 613. और इसका जो लो था वो 640 है, एंड देन इसका जो आया था वो 510 है. सो हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि 613 दो बार दिखा है. और इसका हाई जो है, इसका हाई ये कैंडल का, आप एच देखिएगा यहाँ पे एच, तो ये कैंडल का हाई बना है 639. सो एक यहाँ पे भी कैंडल दिख रहा है, वो भी इसका हाई बना है 639. इसका एच देखेंगे यहाँ पे ये कैंडल का भी, तो 639. सो एक अपने को लेवल मिल गया कि एक 639 और 613. तो उसको अगर हम राउंड फिगर पे कर देंगे तो इसका हो जाएगा 17,640. इसको थोड़ा जूम इन कर देंगे, और एक 610, 17,610, और इसका हो जाएगा 17,640. मतलब इतना जो जोन है वो आपका एक न्यूट्रल जोन हो गया, इसके ऊपर प्राइस ऊपर, इसके नीचे प्राइस नीचे. अगर अभी इस जोन को बनाना हो तो यहाँ पे टूल में जाएंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक कर देंगे, और ये इसकी प्रॉपर्टी सेटिंग्स में जाके वी विल चेंज द कलर एज ए न्यूट्रल, और उसके कोऑर्डिनेट उसके साथ मैच कर लेंगे 17,640 एंड 17,610. ओके, सो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया लेवल्स, लेवल के बाद आइडेंटिफाई कर लिया न्यूट्रल जोन, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है. जितनी भी बार देखेंगे ये जोन से रिजेक्ट हो रहा है, ये जोन से ऊपर जा रहा है, ये जोन से वापस ऊपर जा रहा है. इसको ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, नीचे गया, वापस रिटेस्ट हुआ, नीचे गया. इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे टेस्ट किया, उसी दिन ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, इसको वापस ब्रेकडाउन कर दिया, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और फेल होके नीचे आ गया. अभी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है ये जोन का. अभी जो लास्ट फ्राइडे का सेशन था, सो ऑन द लास्ट फ्राइडे सेशन इट हैज ऑलरेडी गिवन द ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन. So we can expect as far as it will be trading on this, it will be trading above this zone. We might see the bullish moment in the coming trading days. Hope till here everyone is clear. Okay. So अभी हम ये एक जोन डिसाइड कर चुके हैं, और बाकी के लेवल्स भी अगर हम देखेंगे साथ में कि एक इसका जो है ओपनिंग रेड कैंडल है, ओपनिंग ओ मीन्स ओपनिंग, एच मीन्स हाई, एल मीन्स लो, सी मीन्स क्लोजिंग प्राइस. सो इसका जो एच एंड ओ ओपनिंग जो था वो 17,709 पे था. इसका जो ओपनिंग था 17,709 पे था. इसका जो रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है सी 17,711, आप सी देखेंगे यहाँ पे ये कैंडल का 17,711 पे है. तो 9 और 11 मतलब उसके बीच का एक फिगर मिल गया अपने को 7-1, इसका एक फिगर मिल गया 710. तो एक कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 710, तो एक लेवल हो गया अपना 710. और इसका जो हाई बना था वो ऑलमोस्ट वो जोन के नज़दीक बना था, ये जो फ्राइडे की कैंडल है यहाँ पे हाई देखेंगे इसका, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 703. इसका जो ओपनिंग है वो ऑलमोस्ट 706, ओपनिंग वॉज 706. इसका जो लो बना था एल, ये कैंडल का लो, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 704. सो इसको अगर रिफाइन करना तो 706 710 इज लुकिंग प्रेटी प्रॉपर एट दिस मोमेंट, बिकॉज इसका जो ओपनिंग था ये कैंडल का वो 718 का था. इसका अगर हम ओपनिंग देखेंगे ये कैंडल का वो 718 है.
So this looks pretty good at this moment. So we'll go with 710. और उसके बाद नेक्स्ट जो है कहाँ पे ज़्यादा ये ओपन और क्लोज हुआ और कहाँ पे ज़्यादा ये वीक बना रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो एक देखेंगे इसका यहाँ तक का है, तो इसका जो क्लोजिंग है ये ग्रीन कैंडल का, उसका सी वैल्यू आ रहा है 822। इसका जो है क्लोजिंग वो भी आ रहा है 822, मतलब ये दोनों लेवल 822 काम कर रहे हैं सेम सेम लेवल पे। इसका भी क्लोजिंग 822 आया, इसका भी क्लोजिंग 822 आया। सो इसको अगर हम मार्क करेंगे 822 822 दो बार आया, ज़्यादा बार, क्योंकि यहाँ पे भी ये रिजेक्शन लिया था, लो से सपोर्ट लिया था, तो ये 819 से ऊपर आ गया था 819। और रिसेंट का अगर इसका भी आप देखेंगे, इसका हाई बना था 827, मतलब कह सकते हैं कि 820 टू 827, मतलब अगर साइकोलॉजिकली फिगर पकड़े तो 830। तो वो भी एक जोन दिख रहा है, बट वी विल गो विथ साइकोलॉजिकल जस्ट वन लेवल 820। सो यहाँ से हमारा अगर नेक्स्ट टारगेट होगा तो 820 आएगा। बट ये अभी एक अपना यहाँ से लेवल हो गया, इन बिटवीन यहाँ पे भी रिजेक्शन ले चुका है ना, यहाँ भी क्लोज हुआ था और यहाँ वहाँ से भी ये नीचे गिर गया था। तो इसका क्लोजिंग देखते हैं, इसका क्लोजिंग आया था सी 780 और इसका हाई था 781, मतलब 780 भी एक लेवल दिख रहा है यहाँ पे। इसका जो क्लोजिंग सी वैल्यू है, इस द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, द सी वैल्यू हियर is 780 and the high of this red candle is H is also 781. So we can see 780 is also working as a one particular level that we will also cross check with previous price action if it is matching or not. ओके सो देखते हैं यहाँ पे, ये रहा, इसके साथ मैच हो रहा है, इसका ग्रीन कैंडल का ये ओपनिंग है 783 आएगा 783। ओके परफेक्ट। तो ये अपना एक इंटरमीडिएट लेवल हो गया जहाँ तक हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इसका एक प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे जस्ट एक रेफरेंस के लिए कि ट्रेडिंग में हमको दिक्कत ना है। तो इसका जनरली एक ब्लू लाइन कर देते हैं कि एक इंटरमीडिएट लेवल है, अगर यहाँ से आप ट्रेड ले रहे हैं तो ये एक आपको पार्सल प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए इन्वाइट करेगा, इसके ऊपर जाएगा तो बाकी का प्रॉफिट यहाँ पे बुक होगा। तो अभी इतने दो लेवल्स हम ऊपर की साइड निकाल चुके हैं और वी विल गो विद द डाउन साइड। देन विल गो विद द डाउन साइड, व्हाट विल बी द लेवल्स ऑन द बॉडी टाइम फ्रेम पे, ये न्यूट्रल जोन के नीचे क्या रहेगा। सो जब भी देख रहे हैं कि न्यूट्रल जोन के आसपास इसका क्लोजिंग यहाँ पे आ रहा है, सी वैल्यू इज 562, इसका हाई एच मीन्स 553, इसका हाई 564, तो इसका 562 564 और इसका जो क्लोजिंग है वो आ रहा है सी 540 546। देन इसका जो हाई आ रहा है एच 543। ओके देन इसका जो ओपनिंग आ रहा है, ये ओपनिंग ओ मीन्स 575, इसका क्लोजिंग आ रहा है 576, यस। एंड इसका जो हाई आ रहा है दिस इज एच 560। So we can see 560 575 is much more level from this one day time frame। अगर ये लेवल भी आगे रिफाइन होंगे इंटरडे के लिए, सो अभी हम एक लेवल लगा देंगे दैट विल बी 17565, उन दोनों के बीच में, नहीं 560 नहीं 570, वी विल कीप इट एज अ 565। उसके बाद अगर ये लेवल यहाँ से अगर ये तोड़ रहा है नीचे तो कहाँ तक जा रहा है अगर ये लेवल तोड़ रहा है तो काफी नीचे, जैसे अभी यहाँ पे ये मुंह लेके पूरा नीचे आ गया था, ये बियर कैंडल हुआ था ये, और जैसे यहाँ से अगर तोड़ रहा है तो यहाँ तक पूरा लंबा इतना रिसेंटली दे चुका है। तो ये जब भी इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो काफी नीचे मुंह मिल रहा है अभी तक, जैसे यहाँ पे था मुंह इतना यहाँ तक मिला, तो इसका एक लो मार्क कर लेंगे दैट विल बी द 460। इसका लो है 462 और इसका हाई जो है एच इज 477 और इसका जो ओपनिंग है ये वाला ओपनिंग इज 443 एंड देन इसका जो क्लोजिंग है ये भी एक मार्क कर लेंगे, अगर वैल्यू मिल रही है इसका क्लोजिंग 469। सो 60 टू 70 इज अनदर नेक्स्ट जोन, सो हियर वी विल कीप 470, क्योंकि डाउनफॉल में अपने को सेफ साइड खेलना है, दो 5-10 पॉइंट नीचे क्लोज हो रहा है बट हम उसके ऊपर पहले जल्दी ट्रेड क्लोज कर देंगे, बिकॉज इन इंटरडे द मार्केट कैन रिवर्स प्रीटी क्विकली। और अभी हम देखते हैं कि ये जो भी लेवल्स मैं मार्क किया है वो कहाँ कहाँ मैच हो रहा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैच हो रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैच हो रहा है, ये दो कैंडल के आसपास ऑलमोस्ट मैच हो रहा है, देन यहाँ पे मैच हुआ, यहाँ पे मैच हुआ, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैच हुआ, और इसको भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट मैच हुआ, जैसे अभी यहाँ पे 575 या 475 या 470 अभी मार्क किया हमने। सो इसका जो लो था, इसका लो था 485। सो दैट्स वाई अगर हम 460 मार्क करते हैं और 470 से घूम रहे हैं, सो इट विल बी बेटर टू हैव अ बिट ऑफ अ हायर लेवल ऑन द डाउन साइड एंड द लोअर लेवल ऑन द अपर साइड। जैसे ऊपर जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि ऊपर मार्केट 820 तक जा रहा है, बट वी विल कंसिडर एज 810 टू बी ऑन द सेफर साइड टू एग्जिट द ट्रेड अर्ली, because in intraday the move can be violent in if it is inviting any reversal। ओके सो फार अभी इतने लेवल्स वन डे टाइम फ्रेम पे दिख रहे हैं, और अगर हम चैनल या कुछ ट्रेंड लाइन देखें, so let's see if we can identify any channel। So generally to identify channel we can go with this ray at the, sorry, to identify any trend line, first I'm going with this ray option from here drawing panel। First let's see if it is matching here, nothing looks good at this moment here, no, then
we can go with this. So at this moment only this trend line is there, but it is not helping us in any point. So I will skip because it is not looking a proper trend line for me. So now we will go on 1 hour time frame. Okay, so 1 hour time frame, we will go into marking some more more levels. Hope so far everything is clear. You can easily write in the chat box if you have any doubt. I will try to unmute you, or maybe you can just type your doubt. I will try to solve it during this webinar. ओके, सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि हमारे जो मार्किंग्स जो थे ऑलमोस्ट मैच हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये मार्किंग हो गया कि यहाँ पे जाके रिवर्स हो रहा है, और यहाँ पे ये जोन के आसपास ये भी कैंडल 1 आवर का रिवर्स हो रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि इसका जो क्लोजिंग ओपनिंग जो है वो उसी रेंज में हो रहा है, नज़दीकी। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आप क्लोजिंग ओपनिंग यहाँ पे भी हो रहा है, तो ये अपना जोन अभी तक क्लियर हो चुका है। तभी 1 आवर पे हम देख सकते हैं कि इट वाज रिजेक्टिंग फ्रॉम हियर, स्टॉपिंग ऑलवेज हियर, रिजेक्टिंग, कमिंग अप, बट इफ इवन इफ इट वाज कमिंग, इट वाज स्टॉपिंग इन दिस जोन, and like it gave the breakdown, tested this level, rejected, made the red candle, and again from this level it made the red candle, take the support. So this level looks pretty good at this moment on 1 hour. And now we will identify if we can see any pattern on 1 hour. So here it was like kind of a double bottom and it moved up. I can see just a small channel, support channel. Well, let's first go with this. Like if we mark this to this, it looks one trend line. But if I have to convert it into the channel, then we can see another things in this. So like from here, so for the channel, you have to select here and go into this parallel channel option. Then I can watch, I can see this channel here till here. So this is support channel. So I will just make the background of it as a green. So this is what, if it is breaking down, then we can see a downfall. But this is not yet fixed. We can also adjust it for the intraday. Hope so far it is clear for everyone. Okay, so we almost completed one time frame. Sorry, we almost completed first step and the second step. Now we will go for the third step. But here I can also see like it was making a kind of the rounding bottom pattern, and then it gave consolidated above the neckline of this rounding bottom, and then gave the breakout, and it went up. And on the 1 hour time frame, this was the bigger picture of the rounding bottom. Like if I have to draw a rounding bottom, so this was a kind of the rounding bottom pattern, and this was the neckline was 470. It consolidated around that, and then it moved up. So this is one of the pattern, but on 1 hour time frame, it is not useful to do intraday trade. Let's go for the third step, which is 15-minute time frame. So you can also select from this drop down and use 15-minute. So this 15 minutes, we will first find if this level, look, now we can adjust with the recent price action. So we have marked this as a 17,565. So we have to adjust it. First one is here. Why this level? The low of this candle was 571. Low of this candle was again 573. Opening of this candle was 577, and the low of this candle was 575. So we can see the 575 as a psychological looks like more common as a round figure. So we will keep this and adjust this level 575. And if it is going breaking down this level, then we can see here this levels the closing price, opening price. So red candle we will see the opening price here, and the green candle we will see the closing price or the highest wick. So here the closing price of this green candle was C 548. Here the opening was 548. Here the closing was 547. Opening was 548. So as for the round figure, we can see 17,550. So excuse me. So from breakdown of this 575, there is a small scalping, small scalping trade. Like if you are on the expiry and you want to trade this much of a small trade, but you want to make more money, then how can you make? Like if it is giving this type of quick move on the breakdown of this, you can go with like in the money option, which is like maybe trading with the TK. If it is giving you in the afternoon breakout, like अगर वो दोपहर के बाद ब्रेक डाउन दे रहा है इतना छोटा, अगर आपको ट्रेड भी क्विक खेलना है, ये ट्रेड रहेगा हार्डली 10 और 15 सेकंड का, अगर वो आप क्विक मूव खेलना है तो 17,600 एट द मनी, सॉरी इन द मनी का पुट लेके उसमें 20 पॉइंट या 10 पॉइंट का अगर आपको मूव मिल रहा है, सो दैट यू कैन take with a lot of quantity, because on expiry the premium of these options will be very cheap, so you can get like quick move 10 second 15 second, quick take and quick exit. No need to wait for if it is going below this or not. So एक छोटा ट्रेड खेलना हो कि आपको 15-20 सेकंड में पैसे बनाना है, so that like
यहाँ से ये 20-24 पॉइंट का गैप है. सो यू कैन इजीली मेक 8 to 10 पॉइंट्स विद मोर क्वांटिटी एंड यू कैन टेक दिस क्विक ट्रेड एंड अर्न द प्रॉफिट. सो ये एक अपना लेवल हो गया. ये ये नया लेवल निकाला 15 मिनट पे. ये हमने रिफाइन किया है. जो पहले 565 था उसको 575 पे कर दिया, और ये 550 एज अ साइकोलॉजिकल राउंड फिगर हमने ये ज्वाइन किया अभी. सो अभी ये 550 का भी लेवल पास्ट में देख लेते हैं 15 मिनट में, इफ इट इज वर्किंग और नॉट. ओके, सो यू कैन सी द 550 it is moving down, up, moving down. So that's why this was the quick trade 550, quick trade 550. Take an exit. Just on this small candle, you can make quick money with a small movement. With the large quantity or big quantity, maybe you can trade a 10 lot, or if you have the more capacity, you can also take like 20 lots to trade quickly. Okay. सो जनरली अभी हम देखते हैं कि इंट्राडे में स्कैल्पिंग भी करना जरूरी है. ऐसा नहीं होगा कि एवरी डे यू विल फाइंड द ट्रेंडिंग डे. सो इन मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग डे you will find like it is sideways market. So even if you want to earn in that market, so you also have a kind of intermediate small levels where you can take the small trades during the day. So here I can see the fall. Once it give the breakdown of this level 710, it quickly reached till this 760, 640, 645. And if it is going up, so here it was giving the closing. This was again, so we can say this level was 670, 17670. But no, sorry, the closing C was 76, 7. Okay, 676. So we can 675. We will keep the rounding number. So you can see one support, two support, and then gave the up move, and then breakdown of this. And once it take the support, it reached till here only. And even on this day, it gave the breakdown. It just reached till here, and then it gave the breakdown. It reached till here. So like if you want to do small trades, breakdown of this level, take the put, make quick profit and exit. Okay, so we were finding the levels the below the neutral level, neutral zone. So another level that we can find is like it was closing here in the red channel. It was also taking this closing in the green channel, green candle, and here it was also closing this level. So this levels comes as 508. Okay, so we were preparing the levels below this zone. So first level that we identify 575, then 500, and then next we are finding this level, which is 510, but which is 510. Sorry, the closing here is 520, and here the closing is 517, and here high is also 520. So we can consider this is intermediate level. It is not like that it will be working as a support 100%. So these are also like we are marking these small levels in case if you want to trade in sideways market with the scalping. But if you see, if it's breaking down this, we can directly see the moment till here, and here it is taking the moment till here. So iska jo low hai, the candle, the low of this candle. So 520 is our one fixed level, and then we are moving with another adjustment or finding new levels. So iska jo low hai, the low of this candle is 482, and the low of this candle as well is 484. And if you again go back, yeah, the low of this candle is 485, opening of this candle is 497. So 480 बार बार दिख रहा है यहाँ पे 480 की रेंज. जैसे अभी यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेकआउट देके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर अप मूव चालू किया था. सो इसका जो लो है, इसका लो है वो भी 486 है. और इफ वी सी इन द पास्ट एज वेल, अच्छा ये कैंडल का हाई कितना है, हाई इज 489. यहाँ पे भी ये रुक रहा था, एक बार रेजिस्टेंस लिया था. तो इसका जो हाई है वो 494 है, और इसका जो ओपनिंग था वो 488 है. और यहाँ पे अगर मैं एक ड्रॉ लाइन करूँ इसका जो हाई है उसके साथ और इसका भी हाई है, सो मुझे एक छोटा सा लेवल दिख रहा है विच इज 17485. सो एक और भी जोन मिल गया. ये जोन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे क्लोजिंग बार बार यहाँ पे आ रही है यही जोन में, यहाँ पे भी क्लोजिंग बार बार यहाँ पे आ रही है, क्लोजिंग और ओपनिंग यहाँ पे बार बार आ रही है. और पास में भी देखेंगे कि कैंडल यहाँ पे छोटी बन रही है, बट ये जोन में 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट्स ऑल्सो हियर, क्लोजिंग हियर. देन रिसेंटली अगर देखते हैं ये भी जोन है, मतलब ये एक जोन बन चुका है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग बार बार आ रही है इसी जोन में. 3 4 5 कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे आ रही है 15 मिनट की. और रिसेंटली भी देखेंगे तो यहाँ पे भी लेके सपोर्ट लेके ऊपर जा, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे वापस क्लोजिंग, रेड कैंडल पे भी क्लोजिंग यहाँ पे आ रही है. तो एक कह सकते हैं कि अभी तक अगर ये प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, जब भी इसको ब्रेकआउट दे रहा है तो ऊपर जा रहा है, इसको इसको ब्रेकडाउन दे रहा है तो नीचे जा रहा है, इसको यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है तो ऊपर जा रहा है, इसको यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है तो ऊपर जा रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है तो नीचे जा रहा है.
सो फिलहाल अभी अपना प्राइस चल रहा है यहाँ 688 पे. सो वी कैन नॉट से दिस रेंज एज अ न्यूट्रल जोन, बट वी कैन से दिस रेंज एज अ सपोर्ट जोन. अगर वो ऊपर से गिर के, अगर पास्ट में देखेंगे कि ऊपर से गिर के यहाँ पे आके वापस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, यहाँ से रिवर्सल जोन हो सकता है ये. सो वी विल मार्क दिस जोन एज अ सपोर्ट जोन. सो ये जोन हो गया, इसका क्या वैल्यू था 470 और इसका 485. तो ये जो 15 पॉइंट का जो रेंज है इसको हम मार्क कर देंगे, इसका सपोर्ट जोन होने की वजह से इसको ग्रीन कर देंगे. और उसका जो था 17485 और 17470. तो ये अपना हो गया एक सपोर्ट जोन. अगर इसको ब्रेक डाउन दे रहा है तो कहाँ तक आ रहा है, कैंडल्स का लो कहाँ कहाँ तक बन रहा है, उसके साथ क्या मैच हो रहा है. एक 450 है, 17450 राउंड फिगर, यहाँ पे अटक रहा है, यहाँ से रिवर्स ले रहा है, इसका लो भी यहाँ तक आ रहा है, इसका भी लो यहाँ तक आ रहा है. तो ये रिसेंट का जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ तक आ रहा है. फिर वापस वही 450, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यही रेंज में आ गया वापस, यहाँ से ऊपर लेके यहाँ से ब्रेकडाउन देके नीचे जा रहा है, यहाँ पे ही आ रहा है वापस, ये भी कैंडल वहाँ पे आ रहा है. सो इमीडिएट शॉर्ट ट्रेड इसका तोड़ने के बाद यहाँ तक आएगा. इसके बाद अगर ये तोड़ रहा है पूरा ये जोन को, तो वो कहाँ तक जा रहा है वो एक बार देख लेते हैं. सो अगर इसको तोड़ रहा है तो पूरा यहाँ डाउन मूव दे रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस अगर फेस हो रहा है तो पूरा डाउन मूव दे रहा है. तो इसका एक डायरेक्ट अल्टीमेट लेवल अगर निकलना हो तो रिसेंट एक प्राइस एक्शन देखेंगे कि ये जो एक गैप है, तो ये गैप का जो हाई है वहां तक आ रहा है कि नहीं. तो इसका गैप है 343, 17343 है, तो राउंड फिगर विल बी 17345. सो अगर ये गैप देखना है कि अगर यहाँ से रिजेक्शन और सॉरी यहाँ से ब्रेकडाउन देखे यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, और अगर बीच में कहीं रुक रहा है तो देन वी विल फाइंड द इंटरमीडिएट लेवल. ओके, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया परफेक्ट, यहाँ तक आया, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया परफेक्ट, यहाँ तक आया, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया यहाँ तक आया, ये तो जनाब पूरे नीचे आ गए. यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, ओके इट इज कमिंग टिल हियर. अच्छा, यहाँ से सपोर्ट लिया, देन इट इज गोइंग अप. ओके, सो हियर वी विल सी लाइक हियर इट इज कमिंग डाउन हियर, हियर इट इज कमिंग डाउन टिल हियर ओनली. बट देन वी आर ऑल्सो वॉचिंग लाइक ये जो जोन है, ये जो लेवल है, वहां से वापस रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ से वापस जोन से ऊपर जा रहा है, सेम यहाँ से नीचे आ रहा है. तो ये जो जोन है, मतलब दिस लेवल इज 17400, 17400 समथिंग अराउंड इट, बट वी विल कंसिडर ओनली द राउंड फिगर 17400. सो 17400 से नीचे जा रहा है, इंटरमीडिएट एक लेवल मिल गया, 17400 से ऊपर जा रहा है, 17400 के आसपास से वापस नीचे जा रहा है, 17400 से ऊपर जा रहा है. सो वी ऑलरेडी फाइंड द इंटरमीडिएट लेवल, और ये परफेक्ट लेवल यहाँ पे मैच हो रहा है रेड कैंडल का, कि यहाँ से पूरा ओपन होके ऊपर जाके सीधा रिजेक्शन ले लिया. होप सो फार दिस वन ऑन द डाउन साइड इट इज क्लियर. सो अगर अभी हम इसको देखेंगे कि ट्रेड कैसे करना है, सो हाउ कैन यू ट्रेड ऑन द बियरिश साइड. ओके, कल ट्रेड करना हो तो जैसे भी कल ओपनिंग लेट से यहाँ पे आ रही है, इसको यहाँ तक जाने देना है, ब्रेक डाउन दे रहा है, और एक 15 मिनट का मतलब कह सकते हैं कि इस टाइप का कैंडल, ये जो कैंडल है उस टाइप का कैंडल, या फिर ऐसा वाला कैंडल, अगर वो 15 मिनट का कैंडल तोड़ रहा है इसको. सो आपका कैपेसिटी अगर 5 लॉट ट्रेड करने का है तो फर्स्ट ब्रेकआउट पे यू विल गो विथ 50%, आप लेस क्वांटिटी पे एंट्री लेंगे. तो उसमें क्या होगा जनरली कि अगर ये यहाँ पे ब्रेकडाउन देके पूरा वापस घूम गया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, सो यू विल बी योर स्टॉप लॉस विल गेट हिट विथ स्मॉल क्वांटिटी ओनली. एंड देन अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, then you can go with your full capacity and take the trade of your this target, this target, this target until this support. और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लेवल पे भी ये कल तो कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे ये सपोर्ट चैनल जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है अभी तक. तो उसका सपोर्ट चैनल आ रहा है यहाँ तक. अगर कल की बात करें कि 4 अप्रैल है, तो ये 5 अप्रैल को ये यहाँ पे आ रहा है. अगर ये कल पूरा बियरिश देगा तो यहाँ तक हम मैक्सिमम रख सकते हैं, या फिर ये जो सपोर्ट रेंज है वहाँ तक मैक्सिमम रख सकते हैं टारगेट पुट की साइड. इसके बाद नीचे जाएगा, देन वी विल सी टू गो फिर द टारगेट ऑफ दिस 345 और 350. सो फर्स्ट कल अगर 15 मिनट का कैंडल रेड बना के यहाँ पे तोड़ दिया तो गो विथ योर 50% ऑफ कैपेसिटी ऑन पुट, टारगेट स्मॉल टारगेट फर्स्ट ईयर. अगर आप एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो बेटर है कि आप स्कॉल करो, तुरंत निकल जाओ, तुरंत एंट्री करो, तुरंत निकल जाओ. बट आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे एक फर्स्ट एंट्री हुई, अगर ऊपर गया यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, अगर सेफ एंट्री किसी को करनी है तो 15 मिनट का कैंडल ब्रेक होने के बाद अगर 5 मिनट का एक रेड कैंडल यहाँ के साथ रिजेक्शन वाला है, देन यू कैन गो विथ अगेन द एड और एक्यूमुलेट न्यू क्वांटिटी इन योर पुट, एंड यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस फ्रॉम हियर टू अ बिट डाउन, एंड देन कीप फर्स्ट टारगेट, सेकंड इंटरमीडिएट टारगेट. क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला गया, तो भी ये रेजिस्टेंस टेस्ट करना भी आ सकता है. सो दिस रेजिस्टेंस शुड वर्क एज अ सपोर्ट.
तो यहाँ से यहाँ तक आप टारगेट या ट्रेड लेके निकल जाओ। बाकी देखेंगे अगर ये तोड़ के वापस नीचे जाके ऊपर आके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, देन वी विल टेक अनदर पुट, वी विल गो डाउन एंड मैक्सिमम टारगेट वी विल कीप इन दिस जोन। यहाँ पे अगर जोन में एक बार कैंडल छू गई, लाइव कैंडल अगर यहाँ पे टच हो गया, देन वी विल इमीडिएटली एग्जिट ऑन द मार्केट प्राइस फ्रॉम आवर पुट ट्रेड। फिर बाद में देखेंगे अगर इफ यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट हो रहा है एंड देन ऊपर जाने की जगह एक और रेड कैंडल बना दिया, देन वी विल गो फॉर दिस टारगेट एंड दिस टारगेट। सो दिस इज सिंपल इन द पुट ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ दिस न्यूट्रल जोन। होप ये बेसिक एक स्ट्रेटजी इज क्लियर टू एवरीवन कि पुट में जाना हो तो लेवल कैसे ब्रेकडाउन और प्राइस एक्शन कैसे काम करेगा, तब पुट में जा सकते हैं और कहाँ तक। होप इट इज क्लियर टिल नाउ। प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन। ओके, सो अभी हमारे ट्रेड तो हमारे लेवल्स तो हो गए। यस, सेम फॉर स्टॉक्स, क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग विद द प्राइस एक्शन एंड द लेवल्स। सो प्राइस एक्शन लेवल के पास कैसे काम करेगा, दैट विल बी ऑल्सो एप्लीकेबल टू एनी equity, then commodity, even Bitcoin. You can apply this type of levels and the strategy for this price action for any entity. But you have to be sure about how they are following the price in the past. So अगर आप लाइव ट्रेड पहली बार कोई नई एंटिटी पे करने जा रहे हो तो बट बेटर है वो लाइव ट्रेडिंग में उसका प्राइस एक्शन कैसे मूव हो रहा है, दैट यू हैव टू फर्स्ट जज। जैसे अभी आपको सीधा कमोडिटी स्टार्ट करना है बट यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग इन द कमोडिटी, सो आप पहले लाइव मार्केट में उसका प्राइस एक्शन देखें कैसे हो रहा है, आप पहले लेवल्स निकाले, देन डू द पेपर ट्रेडिंग and then you will apply the same logic on your any new entity that you want to trade. So अभी हम डाउन मूव के लिए कितना यहाँ से ले सक कितना लिया इसका क्लोजिंग यहाँ से लेके हम निफ्टी को 300 पॉइंट गिरने के लिए अभी लेवल्स हमारे पास रेडी हो चुका है कि निफ्टी अगर यहाँ से 300 पॉइंट भी गिरती है, सो वी हैव द प्रॉपर लेवल्स फॉर आवर ट्रेडिंग। इतना काफ़ी है, बाकी का नीचे जाएगा तो वो अभी हम ड्यूरिंग द मार्केट देख सकते हैं कि नीचे जा रहा है कि नहीं, देन वी कैन इम्प्रूव अवर नो लेवल्स, इम्प्रूव लेवल प्रिपरेशन ड्यूरिंग द मार्केट, कि ड्यूरिंग द लेवल हम कैसे मार्केट में लेवल बना सकते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप। जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा देन यू विल बी ऑल्सो इम्प्रूविंग अबाउट मेकिंग द लेवल। सो ये हमारा जोन हो गया, इसको मैं लिख दूंगा 640 और ये 610। सो जोन 17610 टू 640, इसके ऊपर मार्केट ऊपर, इसके नीचे मार्केट नीचे। बट कहाँ तक, मैक्सिमम यहाँ तक, इसके नीचे मार्केट टोटली बियरिश सेंटीमेंट में चला जाएगा, बट यहाँ से यहाँ तक इंट्राडे बियरिश सेंटीमेंट, नॉट लाइक अ पोजिशनल सेंटीमेंट। ओके ओके, सो अभी इसके यहाँ ऊपर यहाँ तक लेवल आ गया और उसके ऊपर और ये ब्लू लाइन उसके बीच देखते हैं कि कहाँ कहाँ मार्केट स्टॉप हो रहा है, कि थोड़ा पास्ट में जाएंगे। ओके, अगर यहाँ से अगर सपोर्ट अच्छा मिला तो पूरा ब्लास्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ये ग्रीन कैंडल यहाँ तक आ रहा है और यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा लाइन 740 का दिख रहा है, तो 740 पे बार बार यहाँ पे घूम रहा है ये जोन में। पास्ट में देखेंगे यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है 740 के आसपास ही है, यहाँ पे भी 740 के आसपास है, ये भी 740 के आसपास है, ये कैंडल भी 740 पे क्लोज हो रहा है, ये भी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये भी कैंडल 740 के आसपास है और वहाँ से ब्लास्ट होकर सीधा ये ब्लू जोन ही टच कर रहा है, ये भी ब्लू जोन टच कर, ब्लू लेवल टच कर रहा है, सीधा ब्लू लाइन टच कर रहा है। और पास्ट में जाने की जगह अभी रिसेंटली देखते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ है। ये रहा रिसेंटली, ये भी यहाँ 740 के आसपास था, ये जोन भी यहाँ पे पूरा 740 के आसपास ही ऊपर नीचे हो रहा था। और उसके बाद अप में 742 यहाँ पे भी अटक रहा था, यहाँ पे भी आसपास जूम हो रहा था, प्राइस मूव हो रहा था। देन नेक्स्ट ब्लू लाइन विल बी 780, यहाँ पे भी ये मूव हो रहा था, बार बार क्लोजिंग यहाँ पे आ रही थी। तो ये ट्रेड का अपना अल्टीमेट लेवल हो गया यहाँ से। और उसके बाद यहाँ से ब्लास्ट होने के बाद ये वाला ऊपर तक लेवल आ रहा है कि यहाँ पे भी अटक रहा है, क्लोजिंग ओपनिंग, ये भी यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग यहाँ पे भी आ रही है, ये भी लो इसका यहाँ पे लगा है, इसका ओपनिंग भी यहाँ पे था, क्लोजिंग भी यहाँ पे है रेड कैंडल का, इसका भी ओपनिंग यहाँ पे था, इसका क्लोजिंग ओपनिंग परफेक्ट यहाँ पे है, इसका भी क्लोजिंग ओपनिंग, दिस क्लोजिंग ओपनिंग इज ऑल्सो परफेक्ट हियर, दिस हाई इज ऑल्सो हियर, सो दिस लेवल टिल 820 आई फाइंड इट प्रॉपरली। अभी इसके ऊपर के लेवल देखते हैं, वी कैन मेक इफ वी हैव मेड 300 पॉइंट डाउन, सो वेट अ मिनट, कितने पॉइंट्स थे डाउन में, ये जोन के नीचे सॉरी 260 पॉइंट थे, तो ये जोन के ऊपर 260 पॉइंट, मतलब 17,900 और उसके ऊपर तक हमको मिनिमम लेवल बना दें, तो दैट वी विल फाइंड आउट कि ये जोन के ऊपर जाके यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे भी रुक रहा है, यही जोन पे रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, यही जोन पे सपोर्ट ले रहा है, इसका ब्रेकआउट दे रहा है बट यहाँ पे रिटेस्ट ले रहा है बार बार, ये कैंडल्स भी यहीं पे रुक रही है और यहीं से सपोर्ट ले रही है, दिस कैंडल इज ऑल्सो टेकिंग सपोर्ट, दिस इज ऑल्सो टेकिंग रिजेक्शन। सो ये लेवल अभी कौन सा आ रहा है दैट वी विल आइडेंटिफाई। तो इसका क्लोज किया था सी वैल्यू 880, इसका ओपनिंग था 881, इसका क्लोज था 883,
इसका क्लोज है 885। इसका हाई था जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया वॉज एच 879, दिस 880, this one low is 878, so we are seeing 880 quite a bit few more time, so 7 880 राउंड फिगर रख देंगे इसका अपना लेवल। और इसके बाद इसके ऊपर जा रहा है तो उसको रिजेक्शन बार बार तुरंत मिल रहा है, तो 17,900 ये जो जोन है 17,900 17,900, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम हियर, टेकिंग रिजेक्शन, टेकिंग अगेन रिजेक्शन रिजेक्शन, सो 880 टू 910, तो एक टाइप ऑफ एक कह सकते हैं कि अगर इसको रेजिस्टेंस जोन मान सके, जैसे हमने जैसे हमने इसको सपोर्ट जोन बनाया था, वैसे इसको एक रेजिस्टेंस जोन बना सकते हैं, क्योंकि क्या है कि बार बार प्राइस वहां पे पॉज हो रहा है। क्लोजिंग इतनी ही रेंज में आ रही थी बीच में, यही रेंज में आ रही है बार बार क्लोजिंग, यहाँ पे भी क्लोजिंग आ रही है, हमारा प्राइस ऑलरेडी नीचे है ये जोन से, तो हम इसको एक जोन को रेजिस्टेंस जोन मान सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे ड्राइंग रूम में, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे रिसेंट पे और एक जोन बना देंगे, इसको थोड़ा और वी विल स्ट्रेच इट अ बिट, और इसका हमने लेवल था 880 और 901, वेट लेट मी चेक द प्रॉपर्टी, ओके 17,900, और इसका भी हम कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे डबल क्लिक करके, 17,900, 17,8, sorry 880, and since it was a resistance so we'll mark it as a red। आपको अगर मेजर करना है कितने पॉइंट्स है, तो आपको पहले शिफ्ट दबा के क्लिक करना है, देन शिफ्ट बटन छोड़ देना है, देन यू टू मूव योर माउस द कर्सर, इट्स ऑलमोस्ट 258 पॉइंट अबव दिस न्यूट्रल जोन, एंड शिफ्ट दबाया क्लिक किया देन शिफ्ट छोड़ दिया, एंड देन ऑलमोस्ट 260, सो दिस चार्ट लुक्स प्रीटी गुड। ओके, सो ओवरऑल अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हाउ इसको ट्रेड बुलिश साइड पे कैसे करेंगे, अगर आपको सिर्फ सेफ ट्रेड ही करना है। जैसे अभी मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो रहा है, नीचे जाकर अगर यही लेवल से घूम रहा है और ग्रीन कैंडल दे रहा है, सो टेक 50% ऑफ योर कैपेसिटी फॉर द कॉल साइड, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे आप रख रहे हो और पूरा नीचे जा रहा है, जिसको भी ब्रेकडाउन दे रहा है, तो आपका पूरा स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाएगा। सो एक छोटा ट्रेड यहाँ से अगर ग्रीन सपोर्ट कैंडल बना रहा है सपोर्ट लेके, देन यू कैन एम फॉर फर्स्ट, और you are if you are a safe trader, then wait to break out this level which is 710 with proper green candle. You can do with like 15-minute green candle breaking out this level, and then you have to turn your chart on a 5-minute time frame। 5-minute टाइम फ्रेम पे आपको दूसरा एक ग्रीन कैंडल दिख गया जो रिजेक्शन वाला नहीं है, मतलब रिजेक्शन मीन्स ऐसा रिजेक्शन वाला कैंडल नहीं है, ऐसा रिजेक्शन वाला कैंडल नहीं है। अगर आपको सेफ ट्रेड लेना है, सो यू हैव टू वेट फॉर दिस ब्रेकडाउन एंड प्राइस हैज टू सस्टेन अबव इट 710। अगर यहाँ पे ओपन होके यहाँ से सपोर्ट लेके इसके ऊपर यहाँ का 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे दिया, देन यू टू टर्न द चार्ट ऑन 5-मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट में आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, देन यू गो विथ 50%, स्टिल यहाँ पे रिस्क रिवार्ड काफी कम है, आपके पास रिवार्ड यहाँ तक भी हो सकता है बट रिस्क पूरा यहाँ तक का है। सो इसलिए बेटर यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी लेके जाइए। यहाँ पे 15 मिनट के बाद एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल हो गया, तो देन यू कैन एंटर एट मार्केट प्राइस, टारगेट दिस फर्स्ट, दिस इज योर अल्टीमेट फॉर दिस, बिकॉज फ्रॉम हियर वी हैव सीन इन द पास्ट दैट इट इज also rejecting, so like this, so it was rejecting, it is the same scenario, going down taking support from here, going up, book the profit here. In the past it is already there, the price action is already there, you can see opening in this zone, is in this zone, going down till this level, then moving up, booking profit here, partial profit, ultimate profit here, book here, and if it is going above, then you can aim for this above levels. I will explain it again about the buy trade. If it is going down, taking support, breaking this level, take trade, small target this, and the next target here. If it is sustaining above this or giving the strong breakout with the strong green candle like this is already like you can already miss this. But this candle, look at this candle is different from other past candles. Why? Because this candle was not forming body. This candle was forming the body above this zone with the support above this level. This candle also gave the confirmation that it is taking the support. So you can immediately enter at the market price anytime, take the first target here and second target here and exit the trade. Don't go for more targets. Otherwise, if you want to go higher target, you also have to shift the stop loss. Like if your first stop loss is here, then you have to move it here, then you have to move it here, here, and keep the stop loss here at the cost. Sorry, not the cost, but at the last level there you want to take the profit. So this is the one of the scenario, like moving down, taking support, breaking out, take the buy trade, CE trade, target one, target two, exit the trade. Don't go with the too much of a hope to aim for all this target in the same trade. Market will give another dip if it is sustaining here, taking support again, breaking this level, take the buy trade, first target, and ultimate bonus target, whatever you say, is this zone.
Hope so far it is clear for everyone. And let's say if it is gap up opening here, so we will wait like if it is going up suddenly in first hour, taking rejection, then take the put, first target, second target, exit the trade, because this level is like reversal, either it can take up or go down. And then if it is going up and facing resistance from here, and then it is breaking this level, then go put again, and go like this target, again this and this. Now since the price was trading above this zone, so this zone should work as a support. So this is your ultimate target if you are taking the put from this rejection range, resistance range. Okay, so this was the simple trade setup, how to make levels and chart. And we can see also a small temporary trend line here. If I just connect this one, let's say this, if I connect with this, you can see on that day it was taking breaking down, take resistance from this trend line, gave the breakdown, and it was again taking the resistance, going about taking the resistance, and then from this breakout was like it was not willing to take back to test this. So this trend line we will keep it as well as a kind of working as a resistance or support trend line. So this type of undecisive trend line we will mark it as a blue. So another thing that you can also plan, if it is coming here, trading here, going here, and if you see that from this level, from this trend line, it is again taking the support, then you can see that it gave the breakout, and now it came here to test, to make this resistance as a support now. And then it is going up, then try to take the trade from here on the long side, like the call side, and you have all this above level as your target. You can book at any time by judging the price action. And let's say on morning, if it is opening up suddenly giving the breakdown of this, so and you have the OI Excel sheet like that, most of the people have taken that Excel sheet for the data. So in that data, if it is giving you negative OI data, so you will be much more inclined toward the put. So when you can take the put, अगर ये breakdown हो रहा है और ये zone भी breakdown हो रहा है, so you will be much more sure about taking the put from breakdown of this, and then you can aim for this ultimate target here. इसके बाद जो नीचे target trade रहेगा, that you can trade with अगर इसका ब्रेकडाउन लेट से 3 बजे के बाद आ रहा है, सो इट विल बी नॉट वर्थ to take the trade in the put side. Let it be and let it go that moment. Just be secure with your profit that you earned in the morning. Okay, guys. So this was it from my side in this webinar. You can ask me question if you have. Hope it was easy to prepare a chart. Anyone wants to take the screenshot of this can take the screenshot of these steps. I will make a bit clear. आप भी अपना चार्ट और लेवल प्रिपेयर करके आप मुझे भी शेयर कर सकते हो. मेरा ऑलरेडी ग्रुप है, आप ग्रुप में भी डाल सकते हो. Then we can see. I will check your charts if it is proper or not. If I get the time, then I can also advise you in that where to adjust and where to not. You can also prepare your own charts and you can share it. Yeah, practice तो रहेगा. अगर if you are doing more practice, then you will have the proper speed even to make the levels during the market. कि अगर market के दरमियान भी आपको levels बनाने हैं, तो that you can also make it easily during the market. Okay, so should we end this session? Anyone having any doubt, do reach out to me.